Hello students, I'm Sunanda Maini and I'm going to take up another chapter with you, Memories of Childhood. Now Memories of Childhood has got two stories. One is The Cutting of My Long Hair by Zitkala sir and the other one is We Too Are Humans and that is by Bama. Now both the authors, they have suffered some kind of suppression, some kind of oppression in their childhood on the basis of caste or culture. Both these authors have suffered some kind of suppression in their childhood and which has left indelible marks on their minds, and the outcome of those imprints of childhood is that they have become bitter towards the society and have tried to rebel it, becoming so bold in society that they could overcome these problems. Now, Zitkala sir was a native Indian who was sent to a Christian school and she was made to surrender to the authorities. She was supposed to obey to the strict discipline of the authorities and she had to surrender and get her hair cut, which she did not like. Bama was a Dalit girl who could sense inhuman behavior of those who were of a higher caste. She belonged to a Dalit caste and she saw her own people suffering at the hands of the people of higher caste. She could not take it and so she tried to study very hard and overcome this discrimination and bring herself at par to the society. Zitkala sir एक नेटिव अमेरिकन थी जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल में हॉस्टल में भेजी गई थी। वहाँ पे जाके उसने देखा कि उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर उसके कल्चरल जो उसके अंदर ट्रेडिशंस थी, जो उसके विश्वास थे, उनको ठेस पहुंचती थी. So Zitkala sir has always written against the social dogmas. Dogmas means जो प्रचलित विचार हैं जिनका कोई मायने नहीं है. Zitkala sir एक ऐसे स्कूल में पहुंच गई जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड स्कूल था. उस जगह पे उसके जो सराउंडिंग्स थी स्कूल की, पहले उसने उनके वर्णन किया है और उसमें वो बताती है कि दैट वाज अ बिटर कोल्ड वन. द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, वहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स उगते थे एंड दैट वाज अ बिटर कोल्ड वन. दैट मीन्स बहुत सर्दी थी. बिटर कोल्ड वन का यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंस है बिकॉज द नेचर आउटसाइड was actually equivalent to the coldness. In fact, the coldness of the human beings was rather worse than the cold nature. Nature में बाहर environment में बहुत ही ठंड थी, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो और भी ज़्यादा cold natured थे. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. वहाँ सब तरफ बर्फ गिरी हुई थी और पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे थे, इतनी ठंड थी. A large bell rang for breakfast. वहाँ पर एक बेल बजती है, ब्रेकफास्ट की बेल बजती है. Zitkala sir knew that it was time for her to go to the breakfast room. So she goes to the room along with the other students. वो और बच्चों के साथ वहाँ पे जाती है. अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसे मैं अच्छे से पढ़कर आपको समझाऊंगी क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वहाँ पे हर एक चीज़, उनका उठना बैठना, उनका पहनना, उनका खाना पीना और उनका वहाँ पे खड़े होना या एक कमरे से दूसरी तरफ जाना, सब कुछ
उनके हिसाब से चलता था, स्कूल अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलता था, उनकी पर्सनल कोई भी उन्हें लिबर्टी लेने का हक नहीं था। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears। तो बहुत ज़ोर से घंटी बजती है। ज़ितकला सा को इन चीज़ों की आदत नहीं थी और उसके सेंसिटिव कान थे, उसे उसकी आवाज़ कानों में बहुत ही ख़राब लगती, बहुत ज़ोर से बजती है। The annoying clatter, annoying means जो कान को तकलीफ़ देती है, तुम्हें चिड़चिड़ा कर देती है या तुम्हें इरिटेट करती है। Clatter means noise. Sure, of the shoes on bare floors gave us no peace. That means उन जूतों की आवाज़, वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर किस्म के जूते पहनने अलाउड थे जिनकी आवाज़ आती थी, और वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही annoying थी, इरिटेट करती थी। The constant clash of harsh noises. Constant means लगातार। वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती थी कि उसके कानों में बहुत इरिटेटिंग लगती थी और वो बहुत तकलीफ़ देती थी। With an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue. So that means उन आवाज़ों के बीच में कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आती थी और वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो उसे नहीं समझ में आती थी। Made a bedlam within which I was securely tied. Bedlam means confusion, बहुत ज़्यादा जहाँ आवाज़ें आती हैं वहाँ पे एक बेडलम, उन्होंने बहुत चिक 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 शुरू हो गई जिससे उसमें लगा कि वे उसके अंदर फंस गई है। सो दैट मीन्स ज़ितकला सा एक ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, जो उनका खाना, उनका पहनना, इवन जूते पहनने या उनकी जो ड्रेस या जो यूनिफॉर्म पहनते थे वो सब स्कूल अथॉरिटीज़ के हिसाब से था, और वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जो ज़ितकला सा को नहीं आती थी या नहीं समझ में आती थी। जब वो इस लैंड को डिस्क्राइब करती है, उस जगह को डिस्क्राइब करती है कि वहाँ पे बहुत ठंड थी, तो उसका कहने का भाव ये है कि वहाँ के लोग भी ठंडे थे, कोल्ड हार्टेड, यानी कि उनको किसी से प्यार या सिंपैथी नहीं था। अब जब वो आगे जाती है और वहाँ पे वो देखती है, जब वो ब्रेकफास्ट करने जाती है तो वो देखती है वहाँ पे एक पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। तो एक पीला सा चेहरा पड़ा हुआ है जिस औरत का, वैसे उसका वो गोरी थी, वाइट कलर्ड की थी, सफ़ेद रंग था उसका, वो वहाँ पे उनके पीछे आती है। सो उन्हें लाइन बना के वहाँ पे खड़ा किया जाता है डाइनिंग रूम में, मार्च करने के लिए उन्हें डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है। सो बहुत सी वहाँ पे इंडियन लड़कियाँ थी, दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। सो जो इंडियन लड़कियाँ थी उन्होंने बहुत ही स्टिफ, सख्त किस्म के जूते पहने होते, सॉफ्ट लेदर नहीं था, और क्लिंगिंग मीन्स जो उनकी बॉडी को चिपक रही थी, ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन एंड शिंगल्ड हेयर। स्लीव्ड एप्रन उन्होंने ऊपर से पहने हुए थे छोटी लड़कियों ने, और उनके शिंगल्ड बाल थे। शिंगल्ड मीन्स बहुत छोटे कटे हुए, जो एक तरह से स्लोप करते हैं, उस तरह के बाल थे उनके। और जैसे ही वो वहाँ से अपने एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसन्स, मोकेसन्स एक तरह के जूते होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती, वो सॉफ्ट लेदर के होते हैं, वो अपने जूते पहन के उस कमरे में जाना चाहती है, तो वो जूते वहाँ पे उतारती है, और एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसन्स I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. तो उसके shoulders पे जो उसने blanket लिया हुआ था वो वहाँ से हटा दिया जाता है, और वो कहती है कि मैं उन लड़कियों को देख के मैंने भी जूते उतारे, और वो उस ब्रेकफास्ट रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद एक छोटी सी घंटी बजती है, a small bell was tapped and each of the pupils drew the chair from under the table। और हर एक बच्ची, हर एक जो वहाँ पे स्टूडेंट था वो अपनी चेयर खींचते हैं। दैट मीन्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था दैट द फर्स्ट बेल वॉज सपोज टू टेल देम दैट दे हैड टू पुल आउट देयर चेयर। सो पहली घंटी मीन्स अपनी चेयर बाहर निकालो, और फिर
उसने अपनी जिद कला सर ने अपनी चेयर बाहर निकाली एंड शी सैट डाउन ऑन दैट चेयर, उस पर बैठ जाती है। बट वो उस स्कूल का डिसिप्लिन नहीं था। वहाँ पहली घंटी जो बजती थी वो चेयर खींचने के लिए बजती थी, एंड जो दूसरी घंटी बजती थी दैट मीन्स उनको वहाँ पे खड़े होके खाने के लिए प्रेयर करनी थी, एंड थर्ड बेल जो होती थी वहाँ पे बैठ के वो खाना शुरू करते थे। बट जितकला सर डिड नॉट नो इट, उसे ये नहीं पता था। वो पहली ही बेल बजने पे अपनी चेयर बाहर खींचती है और बैठ जाती है। जब थर्ड बेल होती है और सब बच्चे खाना शुरू करते हैं, जितकला सर को बहुत ही एम्बैरेस्ड फील होता है, उसे बहुत शर्मिंदगी आती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, और वो रोने लग जाती है। उसके बाद सब अपने फोक और नाइफ के साथ खाना शुरू करते हैं। इसे भी कहा जाता है खाने के लिए आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, फॉर दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। वेंचर मीन्स वो कुछ भी नया नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अंदर से शर्मिंदगी आ रही थी कि मैंने उनके हिसाब से नहीं करा, मैंने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया। फिर जब वो खा चुकती है तो उसकी एक फ्रेंड बन गई थी जिसका नाम था जुडविन। Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. उसकी जुडविन जो फ्रेंड थी वो उसे एक वार्निंग देती है। वो वार्निंग ये देती है कि मुझे कुछ कुछ इनकी बातें समझ में आती हैं और मैंने ये सुना है कि ये तुम्हारे बाल काट देंगे। Judwin knew a few words of English, so Judwin को कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। And she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hair. और उसने उस pale-faced woman को बात करते हुए सुना था कि वो इनके लंबे घने बाल काट देगी। जितकला सर को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उसके कल्चर में बाल सिर्फ वो लोग काटते थे जो मोर्निंग में हैं, यानी कि जिनके घर में कोई मर जाता है, अफसोस के उसमें हैं, वो बाल कटवाते थे, या फिर कावर्ड्स के, कावर्ड्स मीन्स जो डर जाते हैं, जो किसी को फेस नहीं कर सकते, उनके काटे जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बाल काट दिए जाते हैं, उनको कंट्रोल में ले लिया जाता है और उनके बाल काट दिए जाते हैं और उनसे काम करवाया जाता है। So Zitkala sir never liked the idea of getting her hair short, and she says, our mothers had taught us that only unskilled warriors, unskilled means वो लोग जो लड़ाई नहीं लड़ पाते, वो who were captured, जिनको पकड़ लिया जाता था, कैदी बना लिया जाता था, had their hair shingled by the enemy, और दुश्मन लोग उनके बाल काट देते थे। सो दैट मीन्स जितकला सर को ऐसा लगता था कि मुझे कैदी बना लिया गया है और मैं शायद इनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ये मेरे बाल काटना चाहते हैं, और ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वो कहती है हमारे घर में, हमारी तरफ, यानी कि उनकी जाति में या जहाँ से वो आती थी, वहाँ पे ऐसा माना जाता था दैट शॉर्ट हेयर वॉज वोर्न बाय मोर्नर्स। मोर्नर्स मीन्स जिनके घर में कुछ मौत हो गई होती है और वो अफसोस में बैठे होते हैं, वो अपना हेड शेव करवा देते हैं। सो इसलिए वो ये फैसला करती है और उसके जुडविन के साथ बात करती है और कहती है कि मैं ये नहीं कटवाऊंगी क्योंकि मैं कावर्ड नहीं हूँ, यानी कि मैं भागी नहीं हूँ लड़ाई से, या मैं अपना इनके साथ मुकाबला कर सकती हूँ। तो जुडविन उसे कहती है वी हैव टू सबमिट, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज दे आर स्ट्रांग, ये बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, बहुत बलशाली लोग हैं। बट वो कहती है नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। कहती है मैं इतनी जल्दी से इनकी बात नहीं मानूंगी या गिव इन नहीं करूंगी, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब कि मैं पहले पूरा जोर लगाऊंगी। अंत में उसको पता था कि उसे उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे और बहुत स्ट्रांग थे। सो दैट इज़ द रीज़न शी सेज आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। वो मौका तलाश करके उस ब्रेकफास्ट रूम से भाग जाती है अपने कमरे में और अपने कमरे में जाके
छुप जाती है। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. Squeaking means आवाज़ कर रहे थे. My moccasins had been exchanged for shoes. उसके जो सॉफ्ट लेदर वाले जूते थे उनकी जगह उसे आवाज़ करने वाले सख्त जूते दे दिए गए थे, क्योंकि यही वहाँ का रूल था। वो भाग जाती है, अपने कमरे में जाके छिप जाती है। अब थोड़ी देर बाद कर्टन्स करे होते हैं उस कमरे के, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और वहाँ पे जाके वो अपने कमरे में जब छुपती है तो थोड़ी देर के बाद उससे आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग वहाँ पे उसे ढूंढते हुए आते हैं, उसका नाम ले रहे होते हैं। Though in the hall loud voices were calling my name, and I knew that even Judwin was searching for me, I did not open my mouth to answer. उसे पता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं। इवन जुडविन उसे ढूंढ रही थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलती और दुबक के बेड के नीचे छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद women and girls entered the room. कुछ औरतें और कुछ लड़कियाँ उसके कमरे में आती हैं। I held my breath. वो अपना सांस रोक लेती है और उनको देखती है। वो सब इधर उधर ढूंढते हैं और उन्हें कहीं नहीं मिलती, और फिर वो कर्टन हटा देते हैं, पर्दा हटाते हैं, और लाइट आने से उसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो वहाँ पे बेड के नीचे दुबक कर बैठी होती है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है, अपने हाथ पांव मारती है, लेकिन उसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती उठा के नीचे ले जाया जाता है और फिर चेयर से बांध के उसके बाल बहुत छोटे काट दिए जाते हैं, मच अगेंस्ट हर विशेस। वो नहीं चाहती थी कि मेरे बाल कटें, लेकिन फिर भी स्कूल अथॉरिटीज़ उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको चेयर से बांध के उसके बाल शॉर्ट काट देते हैं। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स। और वो ये सोचती है कि मैं भी एक कावर्ड हूँ, डरपोक हूँ, मैं भी इनका मुकाबला नहीं कर पाई। और जिस तरह से दुश्मन लोग उनको वॉरियर्स को कंट्रोल में कर लेते हैं, उनके बाल काट देते हैं, इसी तरह से इन अथॉरिटीज़ ने मुझे कंट्रोल में कर लिया और मेरे बाल काट दिए हैं एक कावर्ड की तरह। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर। मोन्ड मीन्स वो रोती है और अपनी माँ को याद करती है। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। लेकिन कोई भी उसे प्यार करने या उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए वहाँ पे नहीं आता। Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. So एक भी इंसान उसकी बात को नहीं समझता जैसे कि उसकी माँ समझती थी। For now I was only one of many little animals driven by a herder. तो ज़िदकला सर को ऐसा लगता है कि अब वो भी सिर्फ एक जानवर है जिन्हें कोई चरवाहा एक तरफ चला रहा है। जैसे बाकी की लड़कियों को स्कूल अथॉरिटीज़ चलाती थी, इसी तरह से वो भी उसी ग्रुप की एक एनिमल है, और जो स्कूल वाले हैं वो शेफर्ड या चरवाहे हैं, हर्डर्स हैं, जो जानवरों को धकेलते हैं एक तरफ। सो दैट मीन्स शी मेंट कि उसके ऊपर हर तरफ से बहुत फोर्स था, हर तरफ से बहुत प्रेशर था, हर तरफ से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना पीना, उनका चलना फिरना, उनका जूता पहनना, उनके कपड़े पहनने और उनके बाल तक स्कूल अथॉरिटीज़ डिसाइड करती थी कि वो कैसे होंगे। और इन लड़कियों को जो उस स्कूल में पढ़ती थी इतना भी हक नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी से खा पहन सकें। सो इस बात का ज़िदकला सर के मन पे बहुत ही गहरा असर हुआ। तभी उसने बहुत बड़े होके ये सब लिखा और अपना एक्सपीरियंसेस रिलेट करा। एंड शी वांटेड टू फाइट द सिस्टम। वो सिस्टम से लड़ना चाहती थी ये सब लिख के, और ये बताना चाहती थी कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। उसने पूरी लाइफ सोशल डॉगमास के अगेंस्ट फाइट किया। डॉगमास मीन्स जो प्रचलित विचार हैं जिनकी कोई यूज़फुलनेस नहीं है। एंड दिस एक्सेप्ट is one of her very famous pieces of writing where she tries to fight the system that all children, whether they go to a
boarding school or whether they are studying in some other school, they should have some liberty in the way of eating and in the way of keeping their hair or dressing up. They have to follow the school rules, but that should be within limits.